Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss decomposers and productivity of grassland ecosystem, grassland uses, and difference between aquatic and terrestrial ecosystem. Decomposers of grassland ecosystem. Populations of microorganisms occur in and on the surface of soil, within the tissues of plants and animals, and in the animal excreta. Bacteria, actinomycetes, and fungi are most abundant groups. Fungi are mostly moulds, yeasts, mushrooms, toadstools, bracket fungi, etc. Some bacteria and actinomycetes are reducers. They consume dead organic matter. Some bacteria of grassland fix atmospheric nitrogen. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की पॉपुलेशंस मुख्तलिफ जगहों पर पाई जाती हैं, जैसे कि सॉइल के अंदर और सरफेस पर, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर और जानवरों के फजलात। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीड्स और फंजाई सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फंजाई में ज़्यादातर मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम्स, टोडस्टोल्स, बैक्ट फंजाई वगैरह पाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीड्स भी फंजाई के साथ डीकम्पोजर्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं। डीकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। ग्रासलैंड्स के कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं। Productivity of grassland ecosystem. Natural grassland is more productive in terms of net biomass production, rate of energy flow, and rate of cycling of nutrients. Unlike forests, biomass does not accumulate above ground and a large amount of synthesized material is transported below ground. In most grasslands, at least half of the synthesized material is transferred to the root system. Net biomass production, rate of energy flow और rate of cycling of nutrients की सूरत में नेचुरल ग्रासलैंड ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ग्रासलैंड्स में फॉरेस्ट की तरह से सॉइल की अपर सरफेस या अबव ग्राउंड बायोमास एकमुलेट नहीं होता, बल्कि सिंथेसाइज्ड मटेरियल की बहुत ज़्यादा मिकदार ग्राउंड के नीचे ट्रांसपोर्ट होती है। बहुत सी ग्रासलैंड्स में तकरीबन हाफ सिंथेसाइज्ड मटेरियल रूट सिस्टम को ट्रांसफ़र हो जाता है। As half of the synthesized material is transferred to the root system, so plants preserve material for unfavorable conditions. In natural grasslands, probably about 1% of the photosynthetically active radiations from sun is converted into plant material. In temperate grassland, the rate of primary production is about 700 to 1500 gram per meter square annually, while in subhumid tropical grasslands it is more than 4000 gram per meter square. चूँकि हाफ सिंथेसाइज्ड मटेरियल रूट सिस्टम को ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसे प्लांट्स अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए प्रिजर्व करते हैं। नेचुरल ग्रासलैंड में तकरीबन 1% सूरज से आने वाली फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस को प्लांट मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में प्राइमरी प्रोडक्शन का सालाना रेट तकरीबन 700 से 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, जबकि सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में 4000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है।
In natural grasslands, large grazing animals consume a relatively small amount, commonly 5 to 10% of total herbage produced. Rodents, birds, and invertebrates may consume equal amount or a little more. नेचुरल ग्रासलैंड्स में लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स पैदा होने वाले टोटल हर्बेज की स्मॉल अमाउंट तकरीबन 5 से 10% कंज्यूम करते हैं। रूडेंट्स, बर्ड्स और इनवर्टिब्रेट्स तकरीबन इतनी ही मिकदार में या इससे कुछ ज़्यादा हर्बेज कंज्यूम करते हैं। Exploitation and management of grassland. The natural grasslands have been used for two purposes. First, crop production. Second, livestock management. नेचुरल ग्रासलैंड्स को दो पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन, नंबर 2 लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन। Only a small fraction of world's grasslands has been brought under cultivation because climate, arid condition, topography, and soil conditions have hindered its way. After use for almost a century, such soils have been reduced to 50% or more in organic matter and nutrient contents. In some areas, salinity has increased. These lands are being utilized properly by farm practices and by application of fertilizers, but still there is a constant danger of decrease in production. दुनिया के ग्रासलैंड्स के बहुत ही कम हिस्से पर कल्टीवेशन की गई है। दरअसल ग्रासलैंड्स की कल्टीवेशन में बहुत से फैक्टर्स रुकावट का बायस बनते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, एरिड कंडीशन, टोपोग्राफी और सॉइल कंडीशंस। तकरीबन एक सदी ग्रासलैंड्स पर कल्टीवेशन करके ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि इनकी सॉइल में 50% या इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट कंटेंट्स कम हुए हैं। कुछ एरियाज़ में सैलिनिटी इंक्रीज़ हो गई है। इन लैंड्स में प्रॉपर लैंड प्रैक्टिसेस और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन में कमी का मुस्तकिल ख़तरा है। Livestock management. Grazing has effects on grassland similar to that of increasing aridity. The more palatable and productive plant species go on decreasing, while less desirable plant species increase in number. Moreover, overgrazing causes reduction in herbage cover and thus the land is damaged by soil erosion. Many such areas have been changed into desert. To avoid such deterioration and to maintain natural conditions in the grasslands, proper range management is essentially needed. बढ़ती हुई एरिडिटी की तरह से ग्रेजिंग के भी ग्रासलैंड पर असरात हैं। ग्रासलैंड की ऐसी प्लांट स्पीशीज जो ज़्यादा पैलेटेबल और प्रोडक्टिव हों, ग्रेजिंग की वजह से कम हो जाती हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा खाते हैं, जबकि लेस डिज़ायरेबल प्लांट स्पीशीज़ जिन्हें हर्बीवोर्स ज़्यादा पसंद नहीं करते तादाद में बढ़ जाती हैं। मज़ीद ओवरग्रेजिंग की वजह से हर्बेज कवर कम हो जाता है और सॉइल एरोजन की वजह से लैंड डैमेज होती है। इस तरह के बहुत से एरियाज़ डेजर्ट में चेंज हो गए हैं। इसलिए इस तरह के मसाइल से बचने और ग्रासलैंड्स में नेचुरल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर रेंज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
Difference between aquatic and terrestrial ecosystem. A terrestrial ecosystem differs from aquatic ecosystem in the following points. First, in water, the temperature is mostly uniform, that is from 0 degree centigrade to 30 degree centigrade, but in air, it fluctuates very much. Therefore, in a terrestrial ecosystem, there are clear variations and extremes of temperatures are well marked. For example, in desert ecosystem, winter temperature is below 0 degree centigrade and summer temperature is 50 degree centigrade. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम से दर्जल पॉइंट्स के लिहाज से मुख्तलिफ है। नंबर 1, पानी में दर्जा हरारत ज़्यादातर यूनिफॉर्म रहता है, तकरीबन 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन पानी से बाहर हवा में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत सी क्लियर वेरिएशंस और टेम्परेचर की एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर डेजर्ट इकोसिस्टम में विंटर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और समर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सेकंड, water is always a limiting factor for metabolism of plants and animals of a land ecosystem. Organisms always face the problem of getting dry because of surface evaporation and transpiration. This problem does not exist in aquatic ecosystem. The absorption and conservation of water is therefore major problem for organisms living on land. नंबर 2, लैंड इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए पानी एक लिमिटिंग फैक्टर है। ऑर्गेनिजम्स को सरफेस एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन की वजह से हमेशा खुश्क होने के प्रॉब्लम का सामना होता है, जबकि ये प्रॉब्लम इक्वेटिक इकोसिस्टम में नहीं होता। इसलिए खुश्की पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए पानी की एब्जॉर्प्शन और कंजर्वेशन मेजर प्रॉब्लम है। थर्ड, प्लांट्स शो मॉडिफिकेशंस लाइक large well spread and deep root system for absorption of water. Waterproof covering like thick cuticle reduced water loss from stem and leaves. Stem and leaves are modified into spines, hair, and large number of other structures for reducing transpiration. Similarly, animals living on land have thick covering on their bodies. Their respiratory surfaces are internal. नंबर 3, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्लांट्स मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस शो करते हैं, जैसे कि पानी की एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा फैला हुआ रूट सिस्टम, स्टेम और लीव्स पर वाटरप्रूफ कवरिंग की वजह से पानी का लॉस कम होता है। ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए कुछ स्टेम और लीव्स, स्पाइंस, हेयर और दूसरी स्ट्रक्चर्स में चेंज हो गए हैं। इसी तरह से खुश्की पर रहने वाले जानवरों के जिस्म पर थिक कवरिंग है। इनकी रेस्पिरेटरी सरफेसेस इंटरनल हैं। The organisms of an aquatic ecosystem are supported by water. Outside water, they lose support and hence collapse. Land plants and animals lack such support. They have other means of support. For instance, plant cells have rigid cell walls. Animals have evolved skeletons and other supporting structures.
एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को वाटर सपोर्ट करता है, जबकि पानी से बाहर ऑर्गेनिजम्स सपोर्ट खो देते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं। लैंड प्लांट्स और एनिमल्स को ये सपोर्ट नहीं होती। इनके पास सपोर्ट के लिए दूसरे मीन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट सेल्स की रिजिड सेल वॉल होती है, एनिमल के जिसमें स्केलेटन और दूसरी सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स बन गई हैं। Fifth, land represents a solid substrate for both plants and animals. It provides support for the land organisms. Animals of land ecosystems have thus evolved more variable means of locomotion than aquatic animals. Sixth, the nature of substrate is more important in land environment than in water. Different types of nutrients such as nitrates, phosphates, etc. are readily available in soil. नंबर 5, लैंड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए एक सॉलिड सबस्ट्रेट है। ये लैंड ऑर्गेनिजम्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसलिए लैंड इकोसिस्टम्स के एनिमल्स में एक्वेटिक एनिमल्स की निस्बत लोकोमोशन के बहुत से तरीके इवॉल्व हो गए हैं। नंबर 6, लैंड इन्वायरमेंट में पानी की निस्बत सबस्ट्रेट की नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुख्तलिफ अक़साम के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रेट्स, फास्फेट्स वगैरह सॉइल में आज़ादाना अवेलेबल होते हैं। In a land ecosystem, air remains in constant motion, hence its composition remains more uniform. The oxygen and carbon dioxide content of the air remains much constant, which is beneficial for the land organisms. लैंड इकोसिस्टम में हवा मुसलसल चलती है, इसीलिए इसकी कंपोजिशन ज़्यादा यूनिफॉर्म रहती है। हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार कांस्टेंट रहती है, जो लैंड ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।